Hello, hi everyone. This is Dr. Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel NEET Biology Unplugged. So today we are going to deal with the structure of human eye. हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पढ़ा था. अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक द वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स राइट इट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन इवन email me on my mail ID. Okay, so let's get started without wasting time and let's study about the structure of human eye. काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस है जो आपको एमसीक्यू के लिए नीट एग्जाम्स में आ सकते हैं. महाराष्ट्र बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी बोर्ड्स में स्ट्रक्चर ऑफ आई आपको पूछा जा सकता है या फिर उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट के फंक्शंस वगैरह आपको पूछे जा सकते हैं. So eyes are the structures which are located in sockets of the skull called orbits. ठीक है, तो ये है आपका skull and ये जो कैविटी आपको दिख रही है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज सॉकेट और दिस इज कॉल्ड एज ऑर्बिट, जहां पर आपकी आईज होती है. सो द अडल्ट ह्यूमन आई बॉल इज नियरली स्पेरिकल स्ट्रक्चर. सो हमारी जो आई बॉल होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अराउंड स्पेरिकल होता है. So it is placed in the socket. So now our eyes are protected bones, eyebrows, upper and lower eyelid with eyelashes and the lacrimal and tear gland. So हमारी जो eyes होती है they are well protected into the socket. हमारी जो skull की जो socket होती है उसको काफी ज्यादा protection देती है. We even have eyebrows, right? Actually all the girls love the long eyebrows. So eyebrows like upper and lower eyelid, eyelashes, lacrimal and tear gland, ये सारे जो structures होते हैं related to eye, they are the structures जो आपकी eyes को protect करते हैं. So now the wall of the eyeball is composed of 3 layers. So now we are coming into the main part of the structure of eye. ये तो हमारा introduction था कि वो कहाँ पर होती है, उसके और भी accessory structures कैसे होते हैं, क्या होते हैं जो उसको protection देते हैं. Now let us come and talk in detail about the structure of eyeball. So the wall of the eyeball is composed of 3 layers. So 3 layer होती है जो eyeball को cover up करती है. So the first layer which you can see it on the screen is called as sclera. So sclera सबसे बाहर वाली लेयर है, external layer. So the first layer is external. हम we are coming from outside to inside. हम बाहर से पढ़ रहे हैं और अंदर की तरफ जा रहे हैं. तो सबसे वाली पहली लेयर जो होती है उसको sclera बोलते हैं. सेकेंड लेयर जो होती है उसको कोरोइड या फिर मिडिल लेयर कहते हैं. And the innermost layer is called as retina. So the 3 layers of the eyeball are: outermost is the sclera, middle one is a choroid, and the innermost one is called as retina, which is the innermost layer. So these are the 3 layers. Now let us study about each layer in detail. So let us first talk about sclera. So sclera का मतलब क्या होता है? Sclera का मतलब होता है हार्ट. तो ये जो स्क्लेरा होता है ये प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द आईबॉल मसल. सो आईबॉल के हमारे जो मसल्स होते हैं उनकी जो अटैचमेंट होती है इट इज प्रेजेंट इन द स्क्लेरा. सो आफ्टर दैट now sclera as it is the external layer, if you see from the structure of your eyes, अगर हम अपने eyes के structure के हिसाब से बताएं कि sclera क्या है, so this one, okay, the white color part which is even opaque in nature, ये part जो होता है उसको हम sclera बोलते हैं. Okay, so you can clearly see it in the diagram. This is the sclera, which is the outermost layer, and it is made up of dense elastic connective tissue with collagen fiber. So ये जो sclera होती है, it's nothing but the connective tissue, and it's having lot of collagen fiber. Now this sclera, if you talk about anterior structure of the sclera, तो अब जब sclera आगे की तरफ होता है, okay, आगे की तरफ यही sclera bulge होता है. Can you see? Can you follow my arrow? Okay, so when this sclera comes on the anterior part, it bulges, and this bulge is called as cornea. क्या कहते हैं हम इसको? We call it as cornea. So I'll show it from the pointer. So this was the sclera, the outermost layer. सब यही sclera बाहर की तरफ, okay, बाहर की तरफ ऐसे bulge करती है, okay, तो it is called as cornea. So anterior bulging of the sclera is called as cornea, which is transparent in nature. So this part of the sclera, which is nothing but the cornea, called as cornea. It is without blood supply. तो यहाँ पर कोई भी blood supply नहीं होती है. तो इसको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा? जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो नरिशमेंट तो चाहिए. सो फ्रॉम वेयर इट इज गोइंग टू गेट द नरिशमेंट? It will get its nutrients from outer tear fluid and inner aqueous humor. Aqueous humor क्या होता है हम आगे जाके देखेंगे. Okay, so tear fluid is nothing but आपके जो tear gland से जो fluid आता है, ओके, उसको टेयर फ्लूइड कहते हैं. तो उसको जो नरिशमेंट मिलेगा वो टेयर फ्लूइड से मिलेगा, एंड इट विल गेट इट्स नरिशमेंट फ्रॉम एक्वियस ह्यूमर.
Now let us come to the main structure of eye. So अभी अगर आप देखो, okay, so we know that this is your sclera. So sclera के ऊपर can you see a transparent membrane जो हमारी आंखों में हर वक्त चमकता जैसा दिखता है. Okay, so there is a presence of a thin transparent membrane called as conjunctiva. तो ये जो हमारी आईज के ऊपर एक पतला सा मेम्ब्रेन है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं कंजंक्टिवा. So this conjunctiva lines the inside of the eyelids and covers the sclera. तो ये eyelids के अंदर भी होता है एंड ये पूरे आपके स्क्लेरा को कवर करता है. So it's a transparent membrane which is covering your sclera. And sometimes inflammation of conjunctiva happens, which is called as conjunctivitis. So conjunctiva is usually, it is a structure which provides protection and lubrication to cornea. So अगर in case conjunctiva का inflammation होता है तो उसे conjunctivitis कहते हैं. और ये conjunctiva क्या करता है, ये आपके cornea को protection भी देता है and lubrication भी देता है. Okay, you must have seen people telling you about the dry eyes, itchiness. अभी आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन अ लॉट ऑफ टाइम, स्कूल्स भी, क्लासेस भी, हर चीज ऑनलाइन हो रही है. ओके, तो इसीलिए जो हमारी आंखें होती है वो ड्राई हो जाती है, राइट. सो फॉर दैट यू कैन यूज सम lubrication. So this conjunctiva gives you protection as well as lubrication to cornea. Now let us come to the second layer, that is choroid. I hope everybody is clear with the first layer, that is sclera. It's very easy. It's a hard structure. उसमें याद रखो कि जब वो anterior की तरफ बल उठती है, ये वाला part, ये वाले part को हम कहते हैं cornea. Now let us come to the second structure, that is choroid. And choroid is called the middle layer. इसको uvea भी बोलते हैं. ये middle vascular layer है. It is a pigmented layer. कौन सी layer है ये? Pigmented layer है. और ये पूरी की पूरी layer complete नहीं है. क्यों कंप्लीट नहीं है वो हम देखेंगे. So this middle layer, choroid layer, is divided into two parts. The first one is called as choroid proper. पहले वाले को choroid proper कहते हैं. Okay, then it is called as ciliary body and iris. So ये कितने parts में divided है? Choroid proper, ciliary body and iris. So let us talk about the first part, that is choroid proper. So again the same structure of eye. So let us see what is choroid proper. So choroid proper is something which is going to line your entire sclera. ये वाला जो part है, okay, जो आपके पूरे sclera को line कर रहा है उसको हम choroid proper बोलेंगे. Due to its pigmented nature, it prevents internal reflection. मैंने आपको क्या कहा कि choroid pigmented layer है, तो वो nature की वजह से वो reflection रोकता है. So ये जो blood vessels होती है जो आपके choroid में, it gives nutrition and oxygen to the third layer, that is retina. Okay, so retina को जो nourishment and oxygen मिलता है, it gets from the choroid because choroid is very very vascular. तो choroid proper क्या है? जहां भी आपको sclera के नीचे जो भी आपको layer दिख रहा है, this red वाला thing, that's your choroid proper. Now let us come to the second part of your second layer, that is choroid, that is ciliary body. So now let us see what is ciliary body. तो choroid becomes thick. Can you see? यहाँ पर रेड वाला जो choroid है वो आगे की तरफ यहाँ पर, ओके, जब वो आगे की तरफ यहाँ पर आ रहा है तो वो थिक हो रहा है. तो उसका जो एंटीरियर पार्ट होता है दोनों भी साइड से, ये देखो यहाँ से भी बचा और यहाँ से भी, दोनों भी साइड से वो थिक हो जाता है और उसको हम कहते हैं ciliary body. What do we call it as? We call it as ciliary body. So this ciliary body is nothing but muscular in nature. So it's a muscular ring-like structure at the junction of choroid and iris. See, this is iris. Okay, ये iris है. तो ये जो ciliary body है, अगर आप ध्यान से देखें तो iris यहाँ पर है, ठीक है. iris और ये choroid proper के बीच वाला जो part है उसको हम कहते हैं ciliary body. तो यही जो choroid होता है वो आगे की तरफ दोनों भी साइड से it becomes thick and it is called as ciliary body. So इसका जो epithelium होता है, it secretes aqueous humor. Okay, aqueous humor, aqueous chamber, vitreous humor, vitreous chamber, ये हमारी eyes के ही part है, हम आगे जाके उसके बारे में पढ़ेंगे. Okay, so now this ciliary body, this one, okay, you can easily, I think, make it out from this diagram. ये ciliary body है. ये ciliary body is attached, okay, and it is holding the lens. Can you see? It is holding the lens. So this attached to the ciliary body are suspensory ligament which hold the lens. So ये ciliary body को कुछ ligaments attach होते हैं जिनको हम suspensory ligament कहते हैं, जो आपकी lens को जगह पर hold करते हैं. And this lens is ectodermal in origin. So this is the lens which is held by the ciliary muscles, ciliary body through suspensory ligament. See, this is the lens.
So the ligaments and muscles of the ciliary body help in the adjustment of size of the lens. So हमारे जो ligaments है, suspensory ligament है और जो muscles of ciliary body है, they are going to help in the adjustment of the size of the lens. Now let us come to the third part. Choroid के हमने तीन part पढ़े. First one is was your choroid proper. Second one was your ciliary body. अब third जो उसी के आगे है, that's your iris. So at the junction of cornea and sclera, see this is the cornea. Okay, ये आपका cornea है और sclera यहाँ पर है. The vascular part of choroid sharply bends. ये देखो, जो आपका choroid है वो यहाँ पर, can you see, यहाँ पर bend हो जाता है. Okay, and it forms a thin colored portion, and this is called as ciliary, it is called as iris. So what is iris? ये देखो, ciliary body के just आगे यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है iris, and this is the colored portion of our eyeball. So at the junction of cornea and sclera, the vascular part of the choroid sharply bends into a cavity of eyeball. ये देखो, ये eyeball की cavity पे ऐसे bend हो जाता है, forming a thin colored portion called as iris. It is perforated in the middle. दिख रहा है बीच में? It is perforated in the middle by an aperture called as pupil. तो बीच में वो perforated होता है and यहाँ पर around आपका आता है pupil. So smooth muscles of the iris helps in regulating the size of the pupil depending on the intensity of light entering the eyeball. तो ये जो आपका iris है, okay, what is the function of this iris? Iris is again muscular. जैसे आपका ciliary body eyeball को adjust कर रहा था, वैसे ही iris क्या करेगा? It will help to adjust the size of the pupil. Okay, depending on the intensity of light. Obviously जब light अंधेरे में, for example, जब रोशनी बहुत ज्यादा आपकी आंखों पे आती है तो आपकी आंख कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, और जब आप दूर का ऐसे देखते हो तो कितने बार आप अपनी आंखें वाइड ओपन करते हो. तो यहाँ पर आपके आईबॉल और आपके जो प्यूपिल है उसके एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. सो प्यूपिल को एडजस्ट करने वाला होता है सिलियरी बॉडी, एंड प्यूपिल को एडजस्ट, सॉरी आई मीन टू से दैट, लेंस को एडजस्ट करता है आपका सिलियरी बॉडी, एंड प्यूपिल को एडजस्ट करता है आपका iris. So the pigment in the iris determines the color of the eye. So as I told you, iris is pigmented. तो आपकी जो आंखों का कलर होता है, it is all because of the pigment present in the iris. Now let us come to the next part, that is lens. ये देखो, this is the lens. So lens is nothing but a transparent elastic biconvex structure. ये देखो, so it's nothing but transparent in nature, biconvex है, दोनों साइड से भी convex structure है, and it is suspended in the eyeball. आपके eyeball में suspended है by the suspensory ligament. ये हमने पढ़ा ही है कि ciliary body आपके lens को hold करके रखती है with the help of suspensory ligament. So lens and suspensory ligament divides the cavity of eyeball into two chambers. So now comes the two chambers. So ये जो आपका lens है, ये देखो, ये जो आपका लेंस है, ओके, एंड ये जो आपकी सस्पेंसरी लिगामेंट कुछ अराउंड यहाँ पर होती है, वो एंटायर आईबॉल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है. पहला पार्ट इज एक्वियस चेंबर, ओके, एंड द सेकंड पार्ट इज विट्रस चेंबर. तो कौन से दो चेंबर बनते हैं? एक्वियस चेंबर, विट्रस चेंबर. कौन बना रहा है? आपका लेंस. तो ये लेंस की वजह से जो आईबॉल की कैविटी होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द टू चेंबर्स. सी, इस तरफ लेंस के आगे की तरफ जो चेंबर है जो छोटा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्वियस चेंबर, एंड जो पीछे की तरफ चेंबर है इसको हम कहते हैं विट्रस चेंबर. सो दिस इज द लेंस, राइट, दिस इज द लेंस. कुछ अराउंड यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट होगा, तो सस्पेंसरी लिगामेंट के इस तरफ आगे की तरफ जो चेंबर है उसको एक्वियस चेंबर कहते हैं, और पीछे की तरफ जो चेंबर है उसको विट्रस चेंबर कहते हैं. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस बिगर वन, दैट इज विट्रस चेंबर. So it's a large space between the lens. See, this is the lens, और यहाँ पर जो innermost layer है आपकी रेटाइना, इसके बीच में जो जगह होती है इसको हम कहते हैं vitreous chamber. And this is filled with a fluid which is transparent, gelatinous, and that is called as vitreous humor. So chamber के हिसाब से ही नाम है vitreous humor, जो कि nothing but एक transparent gel-like fluid होता है. Now coming to the smaller chamber, that is aqueous chamber. So this is the aqueous chamber. तो ये आपकी, ये देखो, आगे का जो बल्ज है हमारा कॉर्निया और लेंस के बीच में जो चेंबर है वो aqueous chamber है, एंड यहाँ पे जो फ्लूइड होती है उसको हम aqueous humor कहते हैं. So it contains a thin watery fluid called aqueous humor. So ये aqueous humor और vitreous chamber ये लोग सब क्या करते हैं? Specifically if we talk about aqueous humor, so it's going to maintain the shape of the
eyeball and it maintain pressure for keeping the lens in position. तो ये eyeball का shape भी maintain करता है, वहां पर एक pressure भी create करता है ताकि जो lens है वो एक ही position पे रह सके. So now let us identify few structures. तो ये white structure तो हमको clearly पता है that this is a sclera. This colored part, ये वाला, not okay, this is called as iris, and this one is your pupil. Okay, so iris is the one which is going to determine the color of your eyeball. So now we are going to come to the last layer. So eye की अब हम last layer पढ़ेंगे. We have already covered the first two layer. Okay, जो कि पहली थी आपकी sclera. Sclera में हमने ज्यादा कुछ as such पढ़ा नहीं है. Sclera में the most important thing was cornea. But yes, choroid में there were many structures which were important. Choroid आगे की तरफ bulge हो रहा था, ciliary body बना रहा था, right? फिर suspensory ligament से lens को hold कर रहा था, and नीचे की तरफ वो बना रहा था iris, जिसके वजह से फिर ये जो लेंस और सस्पेंसरी लिगामेंट्स की वजह से हमारी आईबॉल दो पार्ट में डिवाइडेड थी, एक्वियस चेंबर एंड विट्रस चेंबर. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द आईबॉल, दैट इज द लेयर ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ द लेयर ऑफ द आईबॉल, दैट इज द रेटाइना. तो हमारी जो लास्ट लेयर होती है रेटाइना, इट्स द इनर मोस्ट, वेरी वेरी डेलिकेट एंड नॉन वैस्कुलर. तो इसको नरिशमेंट मैंने बताया था आपको, इसको नरिशमेंट कौन दे रहा है? इसको नरिशमेंट कोरोइड दे रहा है, बिकॉज कोरोइड इज वेरी मच पिगमेंटेड एंड वेरी मच वैस्कुलर. ओके, सो रेटाइना को जो नरिशमेंट मिलती है वो कोरोइड से मिलती है, एंड इट हैज टू रीजन. सिंगल लेयर ऑफ पिगमेंटेड नॉन सेंसरी पार्ट लाइनिंग द आइरिस एंड सिलियरी बॉडी. तो इसके जो रेटाइना है, ओके, जो आपकी आइरिस, ओके, जो आपके आइरिस और आपके सिलियरी बॉडी को अटैच कर रहा है, ये वाला जो लेयर होता है रेटाइना का, इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी सिंगल लेयर. ओके, एंड सेंसरी पार्ट जो होता है वो कोरोइड को कवर कर रहा होता है. So just see it in the diagram. I'll explain you again. So this is the retina. Okay, innermost layer जो येलो कलर की है वो रेटाइना है. तो ये देखो, ये जहां पर अभी पॉइंटर जा रहा है, ओके, ये वाला पार्ट है जो आपके कोरोइड के वहां पर है. तो ये वाला जो रेटाइना का पार्ट है, दैट्स योर सेंसरी पार्ट. ओके, अब इसके आगे जहां पर आपकी सिलियरी बॉडी और आइरिस है, ये वाले जो पार्ट में आपका रेटाइना है, दैट इज नॉन सेंसरी पार्ट ऑफ द रेटाइना. So now it has an outer pigmented part and an inner nervous part. तो इनर नर्वस पार्ट, अंदर का जो पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. तो ये जो अंदर का रेटाइना है, ये कोरोइड के नीचे जो है, ओके, दैट इज ट्रांसपेरेंट एंड इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. सो व्हाट आर द 3 लेयर्स? नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं नीट एग्जाम में, बाहर से अंदर तक कौन सा लेयर है, अंदर से बाहर तक कौन सा लेयर है. काफी बार पूछा भी जा चुका है. सिंपल सिंपल चीजें ही हम भूल जाते हैं और यही चीजें नीट एग्जाम में आ जाती हैं. सो रेटाइना के 3 सब लेयर्स है. सबसे पहला इज योर गैंग्लियन सेल, सबसे इनर. देखो मैंने इनर, मिडल एंड आउटर हर जगह लिखा है सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो. सो गैंग्लियन सेल्स, ओके, दैट्स द इनर लेयर. सेकंड लेयर इज बाइपोलर सेल्स, जो कि आपकी मिडल लेयर है, एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स इज द आउटर लेयर व्हिच इज मेड अप ऑफ रॉड्स एंड कोन्स. सो गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स. सो इनर, मिडल एंड आउटर लेयर. सो आउटर लेयर में थे आपके रॉड्स एंड कोन्स. ये देखो, तो यहाँ पर ये वाले पार्ट में ये पूरा जो सेक्शन है, यहाँ पर आपकी रेटाइना के 3 लेयर होते हैं, गैंग्लियन, बाइपोलर एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स. सो नाउ जस्ट लेट अस सी दिस 3 लेयर इन वेरी मच डिटेल. तो ये देखो, पहली वाली गैंग्लियन हो गई, ये वाली बाइपोलर हो गई, और ये वाली हो गई हमारी फोटोरिसेप्टर सेल्स. ओके, एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स में आपको क्लियरली दिख रहा है 2 टाइप के सेल्स है, दैट इज रॉड्स एंड कोन्स. रॉड्स एंड कोन्स को मैंने एक तरीके से लिखा है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो रॉड्स एंड कोन्स को मैंने एक तरीके से लिखा था. क्यों? कोन्स को मैंने कलरफुल लिखा है, रॉड्स को ब्लैक लिखा है. आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट इट आल्सो. So now let us talk about one more point over here. Retina में there is a blind spot or scotoma. Again an important MCQ कि blind spot या फिर scotoma क्या होता है. Blind spot क्या होता है? See this area, जहाँ पर, okay, can you see this area? So it's a visual field with no photoreceptor cells on the retina. So ये वो पार्ट है जहां पर कोई भी फोटोरिसेप्टर सेल नहीं होंगे, मतलब ना रॉड्स होगा ना फिर आपका कोन्स होगा. तो फिर यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर जो ऑप्टिक नर्व होगी वो क्रॉस कर रही होगी, मतलब वहां से पास हो रही होगी. सो ब्लाइंड स्पॉट नाम से ही यू कैन मेक इट आउट. ब्लाइंड स्पॉट मतलब यहाँ पे कुछ तो नहीं होगा, एंड वो कुछ तो इज नथिंग बट योर रॉड्स एंड कोन्स. सो वहां से जो पास होती है वो होती है आपकी ऑप्टिक नर्व. Another structure which is usually asked is the macula lutea. So macula का मतलब होता है spot and lutea means yellow.
ओके सो आपके ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट बाजू में लैटरली, ओके ये देखो ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है, उसके जस्ट बाजू में जो ये मैंने एनसर्कल किया हुआ है, दिस येलो कलर पार्ट इज कॉल्ड एज मैक्यूला लूटिया। क्या बोलते हैं हम इसको? मैक्यूला लूटिया। अब मैक्यूला लूटिया के बीच में, बीचों बीच यहाँ पर देयर इज अ सेंट्रल पिट विच इज कॉल्ड एज फोविया। ओके सो मैक्यूला लूटिया के बीच में जो पिट होता है उसको क्या कहते हैं? हम फोविया कहते हैं। So fovea is thinned out portion of the retina where only cones are densely packed. So fovea retina का, पूरे retina का वो लेयर है जो सबसे पतला होता है। It's a very thinned out portion and वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? कोन्स होते हैं। कोन्स आर वेरी मच डेंसली पैक्ड। इसीलिए हम कहते हैं कि वहां पर जो विजुअल एक्यूटी होती है दैट इज द ग्रेटेस्ट। तो वहां पर द एक्यूटी, द रेजोल्यूशन ऑफ द विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट। ओके so now let us come to the next part, that is the last layer के जो हमने photoreceptor cells की बात करी थी, rods and cones. ओके आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है कि रेटाइना के दो पार्ट से एक जो आगे का पार्ट था जो कि आपकी सिलियरी बॉडी वगैरह को कनेक्ट, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस को कवर कर रहा था, दैट वाज नॉन नर्वस, एंड पीछे का जो कोरोइड के नीचे था दैट वाज नर्वस। ओके पीछे तीन लेयर थे आपके, गैंग्लियन, बाइपोलर एंड फोटोरिसेप्टर। फोटोरिसेप्टर के अगेन दो रॉड्स एंड कोन्स। उसके अलावा हमने तीन पॉइंट्स पढ़े। द फर्स्ट वन वाज ब्लाइंड स्पॉट जिसको हम स्कोटोमा भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट वाज येलो स्पॉट जिसको हमने मैक्यूला लूटिया कहा। एंड मैक्यूला लूटिया के बीचों बीच देयर इज अ पिट विच इसको हम फोविया कहते हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कोन्स होते हैं। दैट इज व्हाई विजुअल एक्टिविटी इज द मैक्सिमम। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेक्शन, that is the difference between rods and cones. ये देखो ये rods and cones का structure है। okay so these are nothing but the special neurons. What are these? These are special neurons. So when we talk about rods, the rods are around 120 to 125 million and they contain a purplish red protein called as rhodopsin or visual purple, which are nothing but the derivative of vitamin A. So rods कितने होते हैं? 120 to 125 million एंड उसमें एक पर्पलिश रेड कलर का प्रोटीन होता है जिसको हम रोडोप्सिन या फिर विजुअल पर्पल कहते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। सो द ट्वाइलाइट और स्कोटोपिक विजन इज अ फंक्शन ऑफ रॉड। सो रॉड्स का जो फंक्शन है वो क्या है? आपको रात के वक्त दिखना। देखो मैंने सब कुछ ब्लैक ब्लैक लिखा था, तो वो लिखने का भी एक आइडिया यही था कि ब्लैक में लिखा है मतलब जो रात में आपको जो दिखता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द रॉड्स। ऑब्वियसली पूरा एकदम क्लियर भी नहीं दिखता है, बट कुछ एनिमल्स होते हैं जो नॉक्टर्नल होते हैं, राइट? तो उनका जो रॉड होता है वो बहुत ज्यादा एक्विटी देता है उनको। सो रेटाइना ऑफ नॉक्टर्नल एनिमल्स हैव रॉड्स ओनली। सो इनकी जो जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ रॉड्स होता है, हमारे में दोनों है ऑब्वियसली। कोन्स जो होते हैं दे आर अराउंड 5 to 6 million एंड दे कंटेन, अब यहाँ पर जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है? आयोडोप्सिन या फिर विजुअल वायलेट। ये देखो, and these are three types of cones. If you can see, there are three types of cones, that is your red, green and blue. Okay, so red, green and blue ये तीन types के cone होते हैं और इन्हीं के various combinations के वजह से you are able to see the different types of colors. So various combination of these colors produces sensation of various colors. ये देखो, ये हमने स्मॉल लाइक जब हम छोटे थे, जब हम ड्राइंग करते थे तो आपने ये भी किया होगा ना, यू मस्ट हैव मिक्स डिफरेंट कलर्स एंड यू मस्ट हैव गॉट डिफरेंट कलर्स। और जब ये तीनों इक्वल अमाउंट में मिक्स हो जाते हैं तो इट दे प्रोड्यूसेस ऑल कलर्स। ओके so white light, they produces a white light. So white light is produced due to simultaneous stimulation of all the three types of cones. So तीन टाइप के कोन्स थे, तीनों अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब इक्वली मिक्स होते हैं तो आपको व्हाइट कलर दिखता है। तो आपको जो अभी स्क्रीन में व्हाइट कलर दिख रहा है मतलब आपके जो तीनों रेड, ग्रीन एंड ब्लू है वो इक्वली मिक्स हो गए। ओके सो नाउ ये कौन सा काम क्या होता है? दे आर गोइंग टू गिव यू डे लाइट या फिर फोटोपिक विजन। ओके या फिर हम उसको कलर विजन कहते हैं, जो आपको दिन में जो डिफरेंट कलर्स यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज। अभी भी आप स्क्रीन पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ रोजेस वगैरह देख रहे हो डिफरेंट कलर्स के, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर कोन्स। सो नाउ दिस इज अ डिफरेंशिएशन अबाउट द कोन्स। ये वही चीज है जो मैंने आपको पहले बताई है, जस्ट समिंग अप टुगेदर सो दैट इट्स इजियर फॉर यू टू स्टडी। सो इन केस अगर रॉड्स लॉस हो गए, सो इट विल लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस because rods are responsible for your twilight vision, and in case agar cones lost ho gaye, so it is going to cause color blindness because it is the one which allows us to see all the different types of colors. So that was the difference between rods and cones. So now we have completed the structure of
eyeball. It's not that difficult. अगर आप उसको systematically याद रखें कि वो शुरू होता है with the 3 layers. Obviously पहले तो आपको skull, orbit, वो सब के बारे में बात करनी है. Then if you remember about the 3 layers, that is the first one is your sclera, जो आगे जाके पल्ज हुआ, cornea, कोरोइड के 3 पार्ट्स पढ़े, रेटाइना के 3 लेयर्स पढ़े. तो अगर आप इसको सिस्टमैटिकली लिख लोगे, जैसे मैंने सिस्टमैटिकली लिखा है, आपको समझाया है, सो बहुत आसान हो जाएगा. ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ विजन. कैसे हमने ईयर में पढ़ा था, कैसे सारे साउंड वेव्स कलेक्ट हो रहे थे पिना से एंड कैसे अंदर जा रहे थे, सेम वे हम आईज के बारे में भी पढ़ेंगे. सो लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पास टू, ओके, सो आप जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो वहां से आपकी जो लाइट रेज होती है वो सबसे पहले रिसीव करता है आपका कॉर्निया. कॉर्निया के बाद इट गोज टू द लेंस. लेंस के बाद थ्रू योर ट्रिस चेम्बर इट गोज टू द रेटाइना. रेटाइना में जो थर्ड लेयर है आपका रॉड्स एंड कोन्स, वहां पर जाता है. ओके, तो वहां पर जाने के बाद ऑब्वियसली आपके ये वाला लेयर जो रॉड, जहां पर आपके रॉड्स एंड कोन्स, वहां पर जाने के बाद वहां पर है प्रोटीन्स, राइट. सो दीज आर हैविंग फोटोपिगमेंट्स व्हिच आर कॉल्ड एज ऑप्सिन एंड रेटिनॉल. Okay, so this leads to the dissociation of retinal from the opsin. Okay, so it has a photopigment opsin plus retinol. तो क्या होता है, इधर पे dissociation हो जाता है opsin और retinol का, and it changes the structure of opsin. So action potential sets in, then it goes to the bipolar cells, then it goes to the ganglion cells, and finally it goes to your optic nerve. From optic nerve, see, this is the optic nerve, it will go to the visual area in occipital lobe. So आपको कहाँ जाएगा, visual area in the occipital lobe, and you will be able to perceive the sound. Okay, so this is the schematic of the mechanism of the light. So let us go through that. So there is a change in the retina when light rays fall on it. So light falls on the rods and cones, breaking up of light sensitive pigment, जो मैंने आपको बताया retinal. Okay, it's a retinal. Okay, there was a mistake. It is a retinal and opsin. So there is a breaking up of the pigment retinal and opsin, which is going to stimulate the rod and cone, and it is going to create a sensory impulse. Okay, एक nerve impulse create होगा. फिर वो nerve impulse अब आपके सेकेंड लेयर बाइपोलर, फिर आपके फर्स्ट लेयर वो गैंग्लियन लेयर तक जाएगा, फिर वहां से वो ऑप्टिक नर्व में जाएगा, ऑप्टिक नर्व से आपके विजुअल एरिया ऑफ द ब्रेन जाएगा, यू विल परसीव द इमेज एंड यू विल बी एबल टू सी. ठीक है, सो ये हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ आई बॉल. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको इन डिटेल आपको आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी आ सकता है. ठीक है, तो आपके नीट एग्जाम्स में इसमें से काफी बार काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं. ओके, एंड इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट. तीनों लेयर याद रखो, कौन सा स्ट्रक्चर आगे क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा है वो आपको याद रखने हैं. 3 लेयर्स ऑफ रेटाइना याद रखने हैं आपको, रेटाइनल एंड ऑप्सिन याद रखने हैं कि फोटोपिगमेंट्स जो है दैट्स योर रेटाइनल एंड ऑप्सिन. ठीक है, so if you have understood and if you have liked the video, if you have liked the PPT, because PPT बनाने में बहुत मेहनत जाती है, so if you have liked the PPT, please like the video and subscribe to my channel and share it to your friends as much as you can. So I'll soon meet up with the next video where we'll be talking about some other topic. Till then, bye everybody, take care, enjoy and study very hard. Bye.